So chemical equivalent we have done so many times that E is equal to equivalent weight is equal to, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी. यस नो? और अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो हम साफ लिखते थे M इज मैन. मैन मतलब E इंटू N. This we all know. So this equivalent is called chemical equivalent. Is called chemical equivalent. But what electrochemical equivalent is, वो कुछ अलग चीज है. वो क्या है अभी हम बात करते हैं. So one be said कि भाई एवोगैड्रो नंबर जो है वो एवोगैड्रो ने तो डिस्कवर किया नहीं, क्योंकि एवोगैड्रो रहा 1776 से 1856. सुना? एंड द नेम एवोगैड्रो के रिगार्ड में जिस बंदे ने एवोगैड्रो नंबर डिस्कवर किया, वो बात कोई 1919 के आसपास की है. मतलब एवोगैड्रो के जाने के बाद एवोगैड्रो ने इतना बताया था कि भाई equal volume of all gases contain equal number of molecules. पर वो molecules कितने हैं, इस बंदे ने 1909 में एवोगैड्रो के रिगार्ड में उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कह दिया. और उस स्टैंडर्ड वॉल्यूम में 22.4 लीटर में उस गैस के कितने पार्टिकल थे, ये उसने बताया कि वो नंबर 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 है. जिस वजह से मैंने आपको बताया कि 23 अक्टूबर को 10/23 मीन्स 23 अक्टूबर को मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब जिस टेक्निक से इसने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन इज रैंडम मूवमेंट. कंसेप्ट है, आगे जाके शायद आपको आएगा. बट यही एवोगैड्रो नंबर यहां से भी निकाला गया. और निकाला गया कैसे? फैराडे से. इसलिए कि जब हम लिखते हैं कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 coulombs, and coulomb is a charge. So the charge on electron or proton is, yes, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs into something, and that
something if is calculated that 96500 coulombs if divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs will comes out to be and Na particles are present in 1 mole. This is another way to find out that Avogadro number. It means that 96500 coulomb is not charge on one electron, but is charge on 1 mole of electron, and charge on 1 mole of electron is 96500 coulombs approximately, which is discovered by Faraday, so is called 1 Faraday. Is called 1 Faraday. तो अब हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है. सो नाउ आई विल बी राइटिंग कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to E by F. F is Faraday is 965. So E is equal to 96500 into electrochemical equivalent. What is this E? This E is nothing but it is chemical equivalent. तो कौन बड़ा है, केमिकल इक्विवेलेंट बड़ा है या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बड़ा है? सो केमिकल इक्विवेलेंट इज 96500 into electrochemical equivalent. Yes or no? So in that question number 1, you just give me what is the value of electrochemical equivalent. I will be finding what? Equivalent weight. What that value is? That is 96500 into that electrochemical equivalent value is 3 into, yes, 10 raised to the power minus 4, and this now will come in grams. Am I right? Coulomb se coulomb khatam ho jayega. So this will be equivalent weight, and what he is asking for? Atomic weight, and for that he has given the valency. How much? 2 divalent. It means atomic weight will be 2 into E, and that is
your answer. Is it okay or not? So it will be 9.65 into 3 into 2 So how much this is coming? Is there any option 58? So this is your answer. Firstly, I calculated equivalent weight, and equivalent weight, it means here we should then write that electrochemical equivalent is equal to E upon F. Is it clear now? So this is the difference between electrochemical equivalent and equivalent weight. This is electrochemical equivalent. Is it okay now? So today we are having a very important topic of equivalent weight of the acids and bases. Equivalent weight of acid और equivalent weight of base. Equivalent में ये हमारा हमने एलिमेंट कर दिया, सॉल्ट कर दिया, कैटायन एनायन सारा कर दिया, कैटायन एनायन और सॉल्ट का एन फैक्टर कर दिया. Thereafter we did unknown valency and now we are saying equivalent weight of acid base. हालांकि हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं हम लोग, बट डिटेल में पढ़ रहे हैं सामने. इक्वलेंट वेट ऑफ एनी एसिड, हमने कहा कि इक्विवेलेंट वेट इज द बेस्ट मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. यस और नो? द रीजन बीइंग इज दैट रिएक्शन नेवर occurs between acid and base, but reaction occurs between H positive and, so they should be equal not in the term of mole, but they should be equal in terms of H positive and OH negative में वो बराबर होने चाहिए. और H positive और OH negative, यहाँ एक H positive एक OH negative के पास देना है, बेशक उस एसिड के पास जितने मर्जी H पॉजिटिव रहे हों. डिपेंड करता है कि वो रिलीज कितने कर रहा है. बिकॉज एज आई सेड कि राम रावण के बीच में कुश्ती नहीं हुई, लड़ाई हुई. लड़ाई मीन्स ये H पॉजिटिव नाम का तीर है और वहां से OH नेगेटिव नाम का तीर है, और जब ये दोनों बन मिले तो बना वाटर. राइट? इसका मतलब हुआ अगर हम इसके कंटेक्स्ट में एक मोल NaOH लें और एक मोल HCl लें, हालांकि वो एक मोल है बेस का, पर जो इंपॉर्टेंट बात है वहां एक ही मोल OH नेगेटिव का है. तो एक NaOH के साथ HCl एक ही चाहिए, और एक HCl चाहने का मतलब है कि एक OH नेगेटिव एक H पॉजिटिव को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है.
इसका मतलब सॉल्यूशन में पहले भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, अब भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही है। का मतलब हुआ इस बेस की एसिडिटी 1 है और इस एसिड की बेसिसिटी भी 1 है। इट मीन्स ऐसे एसिड में जहां एसिड की बेसिसिटी 1 हो और बेस की एसिडिटी 1 हो, आप मॉलिक्यूलर वेट लें या इक्वलेंट वेट लें, दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि इक्वलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1. What is equivalent weight of sodium hydroxide? It will be sum of equivalent weight of sodium and equivalent weight of hydroxide. What is equivalent weight of sodium? 23. What is equivalent weight of hydroxide? 17. It means this is 40 ग्राम। आप इसकी स्टोकियोमेट्री जितनी मर्जी चेंज करते रहो, एट द एंड यू विल गेट दैट 40 ग्राम ऑफ NaOH इज reacting with 36.5 ग्राम ऑफ HCl, जो HCl का क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि मोल ऑफ एसिड एंड बेस बराबर हो, हमें ये चाहिए कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर हो। इसलिए अगर किसी में एक से ज्यादा, किसी के पास एक से ज्यादा H पॉजिटिव होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिलीज कर देगा। जिस हिसाब से उस बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो उस एसिड की बेसिसिटी मानी जाएगी। यहां आपको 3 H पॉजिटिव नाम के तीर दिख रहे हो, पर फेंका तो सिर्फ एक ही है एक स्टेप में। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां 3H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों में एक एक की होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये भी एक ही H पॉजिटिव देने लायक रहे और रावण जी भी एक ही OH नेगेटिव वहां से निकाल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी ऐसा एसिड या कोई भी ऐसा बेस जिसके पास एक से ज्यादा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव हो, वो स्टेप वाइज उनको दे सकता है, बट एट ए टाइम सिर्फ एक। सामने ध्यान दें तो हमने देखा कि किसी एसिड की बेसिसिटी होनी चाहिए और किसी बेस की एसिडिटी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट मतलब इक्वल बैलेंसी का वेट, और इस टाइम इक्वल क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव। तो यहां इक्विवेलेंस किसका है? जिसने रिएक्ट करना है। किसने रिएक्ट करना है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने। अब हमने क्या किया? we took H2SO4। जब हमने H2SO4 लिया तो उसको देखकर NaOH घबरा गया, कहता ये तो चिटिंग है। तो उसने कहा मैं कौन से दोनों के दोनों फेंक रहा हूं। इसका मतलब हुआ इसके मैक्सिमम H पॉजिटिव 2 निकल सकते हैं, पर एट अ टाइम ये इक्विवेलेंस बनाने के लिए सिर्फ एक ही देगा। तो इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए? इसलिए उस H2SO4 की बेसिसिटी कितना NaOH लगा? तो इस स्टेप में H2SO4 की बेसिसिटी 1 है, पर अभी भी उस सोडियम बाई सल्फेट के पास एक H पॉजिटिव और है। इसलिए उसने क्या कहा NaOH को कि भाई अभी तो बाकी है मेरे पास तरकश। ये मत सोच के लड़ाई खत्म हो गई।
इसलिए अब उसने दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया और अब वो बन गया सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इस स्टेप में कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ? फिर से इस स्टेप में भी। इसका मतलब इस एसिड, ये सॉल्ट है पर Na पॉजिटिव तो अलग रहेगा, इस HSO4 में H पॉजिटिव है जिसकी वजह से एसिड एक्ट कर रहा है। और इसके लिए कितना बेस चाहिए? एक बेस चाहिए। तो इसका मतलब इस स्टेप में तो बेसिसिटी 1 हुई। हमें पूछा गया ओवरऑल बेसिसिटी कितनी हुई, तो हमने क्या बोला? ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी का मतलब हुआ कि हमारे पास कौन है? H2SO4। NaOH और NaOH कितना हो गया? 2NaOH हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि 2 NaOH है। इसलिए हम किसी एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं और किसी बेस की एसिडिटी की बात भी अभी हम करने वाले हैं। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ आपको स्टेप में यह देखना होगा कि उसने कितने H पॉजिटिव दिया है। ओवरऑल कितने दे सकता है ये नहीं। मैंने कहा कि तर्कश में कितने हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना तब है अगर वो चीटिंग करता है, यहां से 1 और वहां से 2 हो, तब डरने वाली बात है। अब हमने देखा कि इस फॉस्फोरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, जैसे ही उसके 3 H पॉजिटिव NaOH ने देखे, उसने कहा भाई ये तो चीटिंग है। उसने बोला नहीं नहीं, चीटिंग थोड़ी ना करूंगा। इसलिए उसने क्या बना दिया? सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाया। और इस स्टेप में उसने सिर्फ 1 H पॉजिटिव दिया। का मतलब हुआ कि इस एसिड की बेसिसिटी इस वक्त 1 है। अब करो अगला स्टेप। अगले स्टेप में हमारे पास अब बन गया था वो NaH2PO4। हमने बोला एक बेस और चाहिए। जब एक बेस और आ गया तो वो बन गया क्या? Na2HPO4 प्लस वाटर। यस और नो? और इस टाइम भी बेसिसिटी 1 ही है। उसके बाद जब ये NaH2PO4 बन गया के बाद एक H उसके अंदर और था कि नहीं था? इसका मतलब अभी भी उसके अंदर वो एसिड कैसा है? Na2 है या Na है? Na2। अभी भी उसके अंदर एक H पॉजिटिव था। इसका मतलब वो सॉल्ट है पर उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। और अब वो बन गया क्या? सोडियम फॉस्फेट प्लस वाटर। तो ये है हर स्टेप की क्या? बेसिसिटी। और फिर निकालनी है ओवरऑल स्टेप की बेसिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां था, ये यहां ले लिया, ये यहां था, ये यहां ले लिया। इट मीन्स द ओवरऑल रिएक्शन फ्रॉम हियर will comes out to be सोडियम फॉस्फेट एक बना। और हमने देखा कि यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पूरी रिएक्शन में 3 यूज हुए, 1, 2 और 3। और 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड यूज हुआ और उसने बना दिया Na3PO4
प्लस 3H2O। इसका मतलब इस एसिड की बेसिसिटी इस रिएक्शन में कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 इज द ओवरऑल बेसिसिटी। सो यू आर सपोज टू सी कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। उस रिएक्शन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं। और जब आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है? एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड होता है और H वो जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड के H पॉजिटिव 2 निकल सकते हैं जो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ है और क्या बना देगा? है कार्बोनेट आयन। इसका मतलब इस एसिड के लिए NaOH कितना चाहिए होगा? 2। इसलिए इस एसिड की बेसिसिटी हो गई 2। और इसका मोलर मास कितना है? 16 3 48 प्लस 12 कितना हो गया? 60 and 2 62/2. So I should say equivalent weight of carbonic acid is 31. Yes or no? So next is oxalic acid. Oxalic acid always remain in crystalline form. Don't see the total number of hydrogens. Only see the hydrogen bonded to oxygen. It means not water. Water is neutral. So it is 1H here, 1H here. It means I should say the basicity of this acid is, yes, basicity of this acid is 2. Take out its molar mass, which comes out to be 126, and hence the equivalent weight will be 63 for oxalic acid. Yes or no? So this is how we find out the basicity of an acid. But now we will have to apply this for base also, where we will be looking for acidity of a base, and that is here. ये कर लिया हमने कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड NS, basicity is oxalic acid, basicity is, this is a nitric acid HNO3 and its basicity is 1. HCl basicity is 1. Acetic acid, don't think of these hydrogens, only that hydrogen who is with oxygen. It means acetic acid is a monobasic acid. Yes or no? You just see here, now we will be looking for acidity of a base. Consider किसको कर रहे हैं अब हम? बेस को. So base when treated with HCl, मैंने कहा to find basicity of an acid, NaOH is taken standard because that produce only one OH negative. And to find acidity of a base, HCl is taken into consideration. So if we see right now, what you will be getting is water, salt तो पहले भी था अब भी है. इसका मतलब इस बेस की एसिडिटी 1 है. तो क्यों हम कहते हैं किसी बेस की एसिडिटी? इसी वजह से कहते हैं किसी बेस की एसिडिटी 1 है. अब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो गुजारा होने वाला नहीं है. कितने HCl डालने पड़ेंगे? 2 HCl, because we are supposed to make H positive equal to
OH negative. So we are getting calcium chloride plus 2H2O. It means acidity of this base is 2. Acidity of this base is 2. Then we having aluminium hydroxide. What is acidity of this base? How many OH negative are there? It means how many H positive we need? 3 matlab 3H2O plus AlCl3. It means the acidity of this base is, yes, 3. And this acid is very weak acid, so called boric acid. Is very weak acid, so called boric acid. And this boric acid is here. This boric acid is weak acid. This boric acid do not give any proton. So this acid is aprotic acid, very, very important one. This is aprotic acid, and this acid is used as carom board powder and eye drops. So this is aprotic acid. This never give any H positive. So we should always remember that there is acid who never give any H positive, and that is boric acid. And rather than this boric acid accept OH negative, this accept OH negative, and by accepting one OH negative, this acid is saying that its basicity is 1. And by accepting this will get converted into कितने OH हो जाएंगे? BOH4 थे कितने पहले? 3. एक नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि एक OH नेगेटिव आया है. So this boric acid, this never give any H positive, is a very weak acid. और इस एसिड को अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें, दिस एसिड इज कॉल्ड लेविस एसिड. वो क्या होता है आगे डिटेल में आएगा. लेविस एसिड वो होता है जिसकी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. और अगर आप देखो तो हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2. तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए? चाहिए कितने होते हैं? 8. तो उससे कम हुए ना. तो जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसको कहते हैं लुईस एसिड. द वन हु इज सब ऑक्टेट, द वन हु हैविंग less than 8 electron is Lewis acid. So I should say ये बोरिक एसिड का नाम एसिड का नाम एसिड इसलिए नहीं होता कि वो H पॉजिटिव देता है. बिना H पॉजिटिव देने वाले को भी एसिड कह सकते हैं. जो एसिड H पॉजिटिव देता है वो नाम कहा था आर्हीनियस. एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने कहा था कि जो H पॉजिटिव दे वो एसिड है. और उसी आर्हीनियस ने कहा था कि जो OH नेगेटिव दे वो बेस है. सो NaOH इज आर्हीनियस बेस, HCl इज आर्हीनियस acid, boric acid is Lewis acid, not Arrhenius acid, but basicity of this acid is 1.
Is it okay or not? So basicity of this acid is 1, and that is boric acid. Now let us talk about the basicity of other acids. Phosphoric acid. What is phosphoric acid? मैं कुछ आपको स्ट्रक्चरल बेस्ड बता रहा हूं, क्योंकि तभी समझ आएगा। स्ट्रक्चर कैसे आते हैं वो हम आगे समझ लेंगे। फॉस्फोरिक एसिड इज रिटन लाइक दिस, और हर वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ होगा वो रिप्लेस हो सकता है। So what you will say, the basicity of this acid is 3. Am I right? If you remove one oxygen from here, yes or no? हमने कहा था इक में से एक O घटाओगे तो क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। Then this acid will become OH. The O which will go is the one who present with the hydrogen. It means, what you will say about what is the name of this acid is? If this is phosphoric acid, this is phosphorus acid. So this is phosphoric acid, and this is phosphorus acid, whose another name is phosphonic acid, whose another name is. So what you will say about basicity of this acid? Yes, the number of replaceable hydrogens कौन होती हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ होती हैं। Yes or no? It means I should say there are 3 hydrogens, but the basicity, very, very important one, the basicity of this acid is 2, and this acid is phosphorus acid. This acid is phosphorus acid. अब इसमें से एक O और निकालो। किसमें से? फॉस्फोरस एसिड में से। जब आप इसमें से एक O और निकालोगे, रिमूव O from here, and by removing one O, what you will call it? Or H3PO2 or PO3? PO2. H3PO2, so called phosphenic acid. Phosphenic acid. अब उसका स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। फॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या था? फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड की बेसिसिटी, और इसका नाम क्या है? फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया,
कितनी हो गई उसकी? 1 हो गई। बनाओ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब बनाया तो एक OH बॉन्ड रहा, ठीक है, और 2 बन गए pH बॉन्ड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन तो कितने हैं? 3 हैं, पर इस एसिड की बेसिसिटी सिर्फ कितनी है? 1 है। फॉस्फीनिक एसिड। ठीक हो गया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? अब हम इससे हायर एसिड्स की तरफ जा रहे हैं। इससे हायर एसिड मतलब 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के लो आमने सामने, 2 मोल फोरिक एसिड के कितने मोल लो? 2 मोल ले लिए। फॉस्फोरिक एसिड, यही था। इसके 2 मोल लो, 1 मोल और ले लो। फॉस्फोरिक एसिड ले लिए 2 मोल। और 2 मोल लेने के बाद इसमें से वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर। दैट इज H एंड OH। निकल गया वाटर। जब वाटर निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा वो लिख लो। क्या बचा आपके पास? इस HOPOH। और आपको बताया गया था कि अगर 2 मोल में से एक वाटर निकले, द प्रीफिक्स यूज्ड इज पायरो। सो द नेम ऑफ दिस एसिड इज, यस, पारो नहीं, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके सामने है, वो आपसे पूछेगा। इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने P डबल बॉन्ड O है? कितने हैं? P डबल बॉन्ड O है 2। कितने PP बॉन्ड है? PP बॉन्ड है 0। है कोई PP बॉन्ड? कितने POH बॉन्ड है? Is 4. So what about the basicity of this acid? Basicity of this acid is 4. Are you getting? Basicity of pyrophosphoric acid. अच्छा, pyrophosphoric acid के लिए कितने phosphoric acid लगे? 2. So commonly this is also called a diphosphoric acid. What this is called? Diphosphoric acid. Diphosphoric acid. अब जो ये डाइफॉस्फोरिक एसिड बन गया, अरे भाई बन गया। इसमें से एक O
निकालो। कौन सा ओ? जो पी और पी के बीच में। पीओ पी बॉन्ड कितने हैं इसमें? हाउ मैनी पीओ पी बॉन्ड? आया था कहीं क्वेश्चन? हाउ मैनी पीओ पी बॉन्ड आ गया? 1। इज इट ओके? अब इसमें से एक ओ निकाल दो। जब आप इसमें से ओ निकालोगे तो कौन सा ओ निकालोगे? ये वाला। ये ओ निकालना है ना। तो देखो आपके पास क्या क्या बना। एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ, फिर से यहां ओ एच, और फिर यहां पी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहां पी ओ एच। यस और नो? अब बताओ कि यहां पी पी बॉन्ड कितने हैं? और पायरो मीन्स 2 मॉलिक्यूल में से, पायरो में से एक ओ निकालने को हम कहते हैं, क्या बताया था? हाइपो। सो दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और ओ कितने में से निकला है? 2 एसिड में से। सो यू कैन कॉल इट हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड। अब ये बताओ कि हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड में कितनी बेसिसिटी है? हाइपोडाइफॉस्फोरिक एसिड का N कितना हो गया? So basicity of this acid is 4. पता लग गया या नहीं लगा? So इसकी 4, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की भी 4। फर्क कहाँ है? सिर्फ फर्क कहाँ है कि एक में पीओपी बॉन्ड है और एक में नहीं है। ठीक हो गया? पीओ बॉन्ड वहां भी उतने ही है जहां इतने थे। पीओएच बॉन्ड यहां भी इतने ही थे, यहां भी इतने ही थे। सिर्फ एक डिफरेंस कहां का है कि इसके अंदर एक जो बॉन्ड है वो कौन सा है? पीओपी बॉन्ड, जिसमें ओ निकाल दिया तो पीपी बॉन्ड हो गया। जैसा आपने कुछ इसमें किया, सेम आपने सल्फ्यूरिक एसिड में करना है। लो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ऐसे होता है वो, H2SO4। H2SO4, so called king of chemicals. Take its 2 मोल। अब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। इसके 2 मोल ले लो और उन 2 मोल में से निकाल दो क्या? वाटर। 2 मोल में से वाटर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम? पायरो। सो नाउ द नेम विल बी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बट दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और जो बना, इसका कॉमन नाम मैंने आपको बताया था। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको याद आ जाएगा। This is commonly called oleum. तो ओलियम की बेसिसिटी कितनी हो गई? ओलियम में SOS बॉन्ड कितने हो गए? So I should say SOS
एक बॉन्ड है। एस एस बॉन्ड कितने हैं? 0 हैं। एस ओ एच बॉन्ड कितने हैं? एस ओ एच बॉन्ड कितने हैं? तो इस डाई सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर हो गया? जैसे आपने उसमें से एक O निकाला, इसमें से भी एक O निकाल दो। जब आप इसमें से एक O निकाल दोगे तो आपके पास जो बच जाएगा वो है SOH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड OH। और अगर हम यहां देखें तो SOS बॉन्ड कितने हैं? SOS बॉन्ड। यहां SOS कितना है? Is it not comparable with the same? SOS is 0। SS बॉन्ड कितना है? 1 है। क्लियर हो गया या नहीं? ठीक हो गया? इस मीन इस एसिड का नाम हम बोलेंगे, कॉमन नेम इज SS बॉन्ड। जहां भी कहीं हो उसको थायो कहते हैं। और यहां कितने SS बॉन्ड है? एक, और इसलिए इसको डाई थायोनिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नाम। डाई थायोनिक एसिड का N फैक्टर कितना हो गया? इस 2। So this acid is a di-basic acid. And the name is dithionic acid. Here it is dithionic acid. The spelling is Di. And the basicity of this acid is, ठीक हो गया? This is एक और चीज भी यहां बता देता हूं मैं आपको, ताकि जो आपने रट्टा है उसको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ऊपर वाले में आपने एक O निकाला, इसमें एक O डाल दो एक O। जहां निकालते हो वहीं डलेगा। So this will comes out to be, जहां O था वहां एक O और आ जाएगा। और आप देखिए कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आया। देखो क्या आया, और बताओ कहीं पढ़ा? H2S2O8 कहीं था? This is called Marshall's acid. This is called Marshall's acid, और कॉमनली कॉल्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया? पर बॉन्ड आ गया। O का मतलब होता है परऑक्साइड बॉन्ड। सो दिस इज पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड और इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। और इसकी बेसिसिटी कहाँ है? यहां और यहां। कितनी हो गई? सो आई शुड से द बेसिसिटी ऑफ मार्शल एसिड इज 2। इज इट ओके? तो हमने इस टॉपिक से क्या पता करा कि किसी एसिड की बेसिसिटी और किसी बेस की एसिडिटी कितनी है। और हमने कहा कि अगर वो स्टेप वाइज चलता है तो ओवरऑल जो हमने अभी तक पढ़ा वो यहां समराइज हो गया कि फॉस्फीनिक एसिड की बेसिसिटी 1 है, फॉस्फोनिक की हमने स्ट्रक्चर भी बनाया 2 है,
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड की कितनी थी? 4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं? H3PO4 को, उसकी कितनी थी? 3। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की 4 थी। और हमने देखा कि भाई ऐसे बॉन्ड जो OH बॉन्ड है वही बेसिसिटी में आते हैं, बाकी जो pH बॉन्ड है वो उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि P की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो pH बॉन्ड टूटना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की। आपने सल्फ्यूरस की बात करोगे तो एक O घट जाएगा। ये देखो सामने सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का N फैक्टर कितना हो गया? 2। सल्फ्यूरस कौन होता है? एक O कम किससे? सल्फ्यूरिक से। दिस इज H2SO4। N कितना है? 2 है। समझ में आ गई बात? सो सल्फ्यूरस है चाहे सल्फ्यूरिक है, बेसिसिटी तो कितनी है? अभी पढ़ा आपने ओ लियम, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी पढ़ा आपने डाइथायोनिक एसिड, अभी आपने पढ़ा थायनस, पढ़ो चाहे थायनिक पढ़ो, N विल बी 2। आपने एक फॉर्मूला लिखना है H2SO5। दिस वॉज इन योर बुक एंड दिस इज कॉल्ड केरोज एसिड। उस पेज में था ये। दिस इज कॉल्ड केरोज एसिड एंड द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड विल बी अगेन 2. Then we did Marshall's acid. Yes or no? So the basicity of this acid is also 2. So this is that we should remember it, that in sulfuric acid and its dimers the N is 2 for all acids. It means in sulfuric acid category every acid having 2 OH bond. Yes or no? So the N factor for this acid will be 2, चाहे वो थायोनिक है चाहे वो परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हमने कैरोज एसिड बोला। क्लियर हो गया? So this is what is acidity of a base and what is basicity of an acid. But इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों हमने इक्विवेलेंट वेट की बात की? अब आती है असली बात, और वो बात है व्हाट वी मीन बाय मोलैरिटी। व्हाट वी मीन बाय मोल? Mole is just weight in gram divided by molar mass and you will get mole. मोलैरिटी का मतलब हुआ कि वो एक सॉल्यूशन है। मोल का मतलब तो क्या हुआ कि वो सॉलिड है। मोलैरिटी का मतलब हुआ कि जब उस सॉलिड को आपने सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब NaCl आपके हाथ में है और NaCl आपने पानी में डाल दिया, तो जब पानी में डाल दिया तो NaCl पूरा मिसिबल है और उसकी
जो टेस्ट है वो पूरे पानी के अंदर आ गया, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और जब वो NaCl 58.5 मेरे हाथ में है तो है 1 मोल। एंड इफ दैट 1 मोल is dissolved in 1 liter, that concentration become 1 mole per liter, and that is what is called molarity. So it is the number of 1 mole। तो तब है अगर 1 ही मोल होगा, अगर 5 मोल हुए तो क्या हो जाएगा, फिर 5 मोल हो जाएंगे। So we should say the definition is, it is defined as the number of moles of the solute present in 1 liter, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। स्टैंडर्ड क्या है कि आपने उसका कितना सॉल्यूशन बनाना है, 1000 ml बनाना है। ठीक हो गया। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप 1000 ml की फ्लास्क ले लें। एक ऐसी फ्लास्क लें जिसकी कैपेसिटी 1000 ml की हो। इस फ्लास्क की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1000 ml। और ध्यान से सुनिएगा, जहां तक ये भरी है इसकी कैपेसिटी यहां तक 1000 ml की है। समझ में आ गई बात। अब हमें कहा गया कि आप 1 मोलर NaOH बनाओ। सो मोलरिटी इज, न्यूमेरिकल के लिए मोलरिटी इज मोल into 1000 upon वॉल्यूम इन ml। मतलब अगर तो 1000 बना दिया तो ठीक है, पर क्या पता आपने 100 ही बनाया हो। सो VmL मतलब वॉल्यूम इन ml। अब व्हाट इज दिस मोल, व्हाट इज मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या सीधा लिखूं मोलर मास। क्या है की बात नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या सीधा लिखूं मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन क्या। ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट द मोलरिटी। अब आपको बोला कि 1 मोलर NaOH बनाओ। क्या बनाओ, 1 मोलर। मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। Molarity is represented by capital M। कैपिटल M जहां भी लिखा होगा उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन कितने ml में बनाया गया है, 1000 ml में बनाया गया है, 1 मोलर। क्लियर हो गया। अब क्या बोला आपको कि NaOH का 1 मोलर बनाओ, मतलब
मतलब what we mean by 1 molar, what we mean by 1 molar NaOH. Yes, tell me, what does this mean? This means that 1 mole of NaOH, हाँ जी, present in, आप लाला जी के पास गए और उससे बोला लाला जी 1 मोल NaOH का दे दो, लाला क्या पकड़ाएगा आपको? अरे लाला क्या पकड़ाएगा? 40 ग्राम NaOH। 1 मोल मतलब मोलर मास, and molar mass of NaOH is 40 ग्राम। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यस, डिवाइडेड बाय मोलर मास। में आगे कहीं भी M2 यूज करूंगा तो आपने समझना है कि वो सल्यूट का मोलर मास है, और M1 यूज करूं तो समझो कि वो सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना आ जाएगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? वो यहां से नहीं निकला, मोल इंटू, बेटा मोल इंटू M2। अब आप कोई भी सल्यूट बोलते रहो और इस फॉर्मूले को लगाते रहो। कौन बनाना था अभी आपने? अभी कौन बनाना है? NaOH कितना मोल बनाना है? 1, तो लिखो 1। कितना मोलर मास है? 40। कितना ग्राम डिसॉल्व करोगे? 40 ग्राम। कितने में? 1000 ml में। सुन लिया? तो आप सबसे पहला क्या करोगे? सबसे पहला आप एक खाली फ्लास्क लोगे, ठीक है? या यही सोच लो कि आपने अभी ये फ्लास्क खाली ली है और इसके अंदर आप डाल दोगे कौन? NaOH। कितना डाल दोगे? कितना डाल दोगे? 40 ग्राम। और फिर डाल दोगे पानी और उसको शेक कर दोगे। NaOH एंड वाटर इज सॉल्यूबल। NaOH थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? उस फ्लास्क को टैप के नीचे ले जाओगे और जहां तक 1000 का मार्क है वहां तक उसको भर दोगे। अब बन गया ये 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर बनाना है 0.5 मोलर तो 0.5 इंटू 40 मतलब 20 ग्राम। अगर बनाना है 2 मोलर मतलब 80 ग्राम्स। यस और नो? इसका मतलब हुआ आपने टोटल वॉल्यूम 1000 कर देना है पानी से भर के, और फिर उस फ्लास्क को शेक कर देना है। अब वो बन जाएगा किसी का भी उतना मोलर सॉल्यूशन। अब इसके बेस न्यूमेरिकल कैसे आएंगे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि न्यूमेरिकल में क्या करना है। पर इससे पहले कि मैं वहां जाऊं आप थोड़ा ध्यान से देख लो इधर। अगर आप इस बात को देखें तो ये वेट क्या है और ये मोलर मास का यूनिट क्या है? this is for a particular weight this will be constant, am I right? And 1000 is also a constant, so who is variable? मतलब अगर मोलर बनाया तो ऑटोमेटिकली पता लग गया कि वॉल्यूम कितना है? 1000 है। पर अगर आपने 1000 नहीं बनाया तो 1 मोलर नहीं है। इसका मतलब हुआ अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से यह पता लगता है कि यहां
मोलैरिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। मतलब कि मैंने क्या किया, इस फ्लास्क का वॉल्यूम 2 लीटर कर दिया, समझ रहे हो? 2 लीटर वॉल्यूम कर दोगे और मोल वही रहे, तो मतलब आप चाय बना रहे थे तो मम्मा ने कहा बेटा 2 गेस्ट और आ गए और बना दे चाय। तुमने क्या किया, उसी में ही 2 गिलास पानी डाल दिया और दे दिया उनको, तो मीठा तो काफी हो गया होगा। आपने क्या किया, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया है। क्या आपने चीनी और डाली तो मीठा कम हो गया या ज्यादा? कम का मतलब हुआ, जैसे आप यहां देख रहे हो, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि वहां एक्सपेंशन होती है। सुना है ना? सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सुनो, हमने यहां से 1 मोलर सॉल्यूशन दिल्ली भेजा। क्या भेजा? 1 मोलर, ये कंटेनर हमने पैक करके दिल्ली भेज दिया। यहां टेम्परेचर है 26-27 डिग्री, दिल्ली में टेम्परेचर है 48 डिग्री। जब ये कंटेनर चंडीगढ़ से जाता हुआ दिल्ली जा रहा था तो टेम्परेचर बढ़ता गया, तो उसके अंदर कौन है, लिक्विड है, तो लिक्विड में एक्सपेंशन तो होती है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें हैं, 2। एक चीज कौन है, सल्यूट, दूसरा कौन है, सॉल्वेंट। जो है सल्यूट वो है वेट 40 ग्राम, और जो है सॉल्वेंट वो है लिक्विड। तो जब आप यहां से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से आप पंजाब में एंटर हुए, दिल्ली पहुंचे, तो लिक्विड टेम्परेचर से एक्सपेंड कर गया। क्या NaOH किया? इसका मतलब चीनी तो उतनी रही पर चाय बढ़ गई, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के अंदर किसका? सॉल्वेंट का। और अब जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा, मोल तो उतने ही रहे। तो एक दोस्त ने यहां से दिल्ली अपने दोस्त को 1 मोलर NaOH भेजा। जब दिल्ली में पहुंचा तो सोच रहा था फोन करेगा, भाई पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, कोई फोन नहीं आया। फिर उसने पूछ दिया कि यार भाई तेरे को सामान भेजा था, मिला कि नहीं मिला? कहता तू बकवास मत कर, मेरे साथ ज्यादा बात मत कर। कहता क्या हो गया? कहता तेरे को पता तेने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया? कहता नहीं। कहता 1 मोलर NaOH मांगा था, वो तो था ही नहीं 1 मोलर। अब क्या जवाब दे? वो भाई मैंने 1 ही भेजा था, वहां टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब तेरे को मिला भी तो 1000 ml से ज्यादा होगा। इतना गर्म क्यों हो रहा है? यहां से दिल्ली पहुंचते हुए एक्सपेंशन हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, मोल तो उतने ही रहे। ठीक है यार, तेरे को अगर कंसंट्रेशन कम मिली है, तेरे को वॉल्यूम भी तो ज्यादा मिला है। ये मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने किया है। का मतलब हुआ, उसी 1 मोलर को अगर हम लद्दाख भेज देते तो वॉल्यूम कम हो जाता, मीठा बढ़ जाता। का मतलब हुआ, मोलैरिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Hence is not a good way of expressing concentration। ये तो किसी को लड़ाने का काम कर रहा है। सो इधर हमने लिखा, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मोलैरिटी decreases with temperature। Hence
varies from place to place, hence is not a good way of, hence varies from place to place is not a preferred way of expressing concentration. Am I right? ये तो क्या थी? मोलैरिटी. अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा टॉपिक किया, और टॉपिक का नाम था इक्विवेलेंट वेट. नॉर्मेलिटी करने के बाद न्यूमेरिकल करते हैं. नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी कैसे डिफाइन किया? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्यों कहा? कि 1000 सब कुछ मिला के है. सो नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं? मोल नहीं लेते, बल्कि मोलर मास के बजाय क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट. सो द डेफिनेशन इज gram equivalent of the solute. Gram equivalent of the solute present, yes, present in J 1000 ml of solution. Present in 1000 ml of solution. Getting or not? So this is नॉर्मेलिटी. तो फर्क कहां है? सिर्फ कि आपने मोल के बजाय क्या लिख दिया? सो हमने लिख दिया यहां नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज, मोल के बजाय क्या लिखें? ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम इन. सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या लिया आपने? उसको लेने का क्या फायदा हुआ अभी बताता हूं. एंड द यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या था? मोल per liter. Here it is gram equivalent per liter. Gram equivalent per liter. अब ध्यान से यहां ध्यान देखो जरा. यहां नॉर्मेलिटी इज, व्हाट वाज मोलैरिटी? मोल. व्हाट इज नॉर्मेलिटी? द डिफरेंस इज हियर ओनली ग्राम इक्विवेलेंट. का मतलब मोल किसके बराबर होता था? weight in gram upon molecular weight. So here it is weight in gram upon equivalent weight. तो आप मुझे को बताओ कि फर्क कहां जैसे पड़ा? अरे फर्क कहां जैसे पड़ा? सिर्फ इक्विवेलेंट वेट आया मॉलिक्यूलर वेट की जगह. यस और नो? बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या नॉर्मेलिटी भी प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होगी? अरे डिफरेंट होगी. क्यों? वॉल्यूम नहीं है यहां. इट मींस सिमिलर टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज विद टेम्परेचर. पर मैं वो बात नहीं बोलूंगा. कौन से वाली बात? सो इज नॉट प्रेफर्ड मैं नहीं बोलूंगा. क्यों? क्योंकि आपको क्लियर बता दिया कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज सुपीरियर देन मोल कंसेप्ट. रिएक्शंस ऑलवेज अकर्स in terms of equivalent means in terms of normality.
सो नॉर्मेलिटी इज बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जहां केमिकल इक्वेशन हो रही होगी. सो नॉर्मेलिटी इज प्रेफर्ड वेयर द A and B reactant combine to form product. Is preferred where reactants combine to form product. Normality is preferred. Am I right? अब अगर मैं इन दोनों को देखूं और रिलेट करूं तो क्या रिलेशनशिप आएगी. सो हम लिख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. किसकी रिलेशनशिप देखनी है. मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. लो जी मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो सभी लोग पहले. The formula of molarity is, yes, weight upon molar mass. Yes or no? Into 1000 upon volume in ml. अब किसका फॉर्मूला लिखो. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दिस. यस और नो. अब हम क्या करते हैं इस दैट लेटस फर्क कहां है वो देख लेते हैं. अगर सब चीजें सेम हुई तो ये है. यस नो. ये है तो ये है. इट मीन्स आई शुड से नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी. तो क्या आ गया ये मोलरिटी बाय, हाँ जी, मोलरिटी बाय नॉर्मेलिटी कितना आया. Molarity by normality is equal to, yes, molarity by normality is equal to equivalent weight divided by molecular weight, या equivalent mass divided by molecular mass. अब आप ध्यान दो जो आपने पढ़ा. क्या पढ़ा. M is man. पढ़ा कि नहीं पढ़ा. मतलब मोलर मास इज n टाइम्स इक्विवेलेंट मास. यस और नो. इट मीन्स मैं M की जगह क्या लिख दूं. E इंटू n और ऊपर क्या लिख दूं. E. इक्विवेलेंट वेट क्या लिखूं. E लिखूं ना. और नीचे क्या लिख दूं. E इंटू एन. E इंटू एन. जरा ध्यान दें सामने. किसी की बैलेंसी कम से कम कितनी हो सकती है. 1. किसी का एन फैक्टर कम से कम कितना हो सकता है. 1. चाहे वो सॉल्ट है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, कोई भी है. इसका मतलब हुआ इस एन की वैल्यू कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1 से बाद 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. अगर n 1 हुआ तो फिर क्या हो जाएगा. m और e बराबर हो जाएंगे. और अगर m और e बराबर हुए तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी. आर यू गेटिंग. जितना n बड़ा होता रहेगा उतना m बड़ा होता रहेगा. इसका मतलब इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट m इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन n. ये ठीक लिखा मैंने. n या e. m इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन e.
आजी बोलो भी। और अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, हो गया। और जब मैंने ऐसा कर दिया तो आपके पास आ गया n इज इक्वल टू, बोलो जी, n इज इक्वल टू m इंटू n, यस और नो। और इस n की वैल्यू क्या है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप बोलें, जबरदस्ती नहीं है कोई भी, अगर आप बोलें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख दूं ऐसा या नहीं लिखूं, देख लो। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? इसका मतलब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर भी हो सकती है या नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से बड़ी भी हो सकती है। अब बड़ी है कि छोटी है कौन डिसाइड करेगा? एन। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर है ना, तो वो 2 नॉर्मल है, क्योंकि n फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। सो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। इट मीन्स आप मोलैरिटी को निकालोगे तो नॉर्मेलिटी का इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधी डायरेक्ट रिलेशनशिप से निकाल सकते हो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है दैट इज हियर। आप अगर इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तो प्रूव हो जाएगा कि हां ऐसा होता है। पर ये जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है, इसमें से मोलैरिटी तो बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्मेलिटी सिर्फ उन केस में लेना है जहां रिएक्शन हो रही है। समझ में आई बात? इसी वीडियो के एंड में क्वेश्चनर होगा, वहां क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपने अगली क्लास में करके लाना है। बट लास्ट एक छोटी सी बात जो मैं कर चुका था, सिर्फ नाम ले रहा हूं, और नाम है फॉर्मेलिटी। वो क्या होती है? फॉर्मेलिटी मीन्स जो हम कर रहे थे, ये सब फॉर्मेलिटी ही तो थी। आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स में कभी भी आपने मोलर मास नहीं लेना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में मोल की फॉर्म में कभी नहीं होते, बल्कि काय में फॉर्म में होते हैं? आयन की फॉर्म में। इसलिए हम उनमें क्या लेते हैं? सीधा फॉर्मूला मास। तो सिर्फ फर्क लिखने में है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यस, फॉर्मूला वेट। और ये किन के लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आप किसी फॉर्मल को मोलर बोल दो तो कोई बात नहीं, पर आप किसी मोलर को फॉर्मल नहीं बोल सकते। जब आपने NaCl को पानी में डाला तो काय में टूट गया? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो क्या बन गए वहां? फॉर्मूला आयन बन गए। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उनका हमने सम किया तो 58.5 आया। वही तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। इसका मतलब हुआ फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट एक ही होता है, सिर्फ बोलने में फर्क है। इसका मतलब फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही चीज होती है, बस बोलने में फर्क है। तो किसी आयनिक कंपाउंड के लिए द बेस्ट टर्म वी शुड यूज इज फॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. So this is what is formality. तो फॉर्मेलिटी क्या है? आपने किसी आयनिक कंपाउंड की मोलैरिटी ही निकाल देनी है, पर बोलना क्या है? फॉर्मल बोलना है। का मतलब हुआ हमारे पास जो भी सॉल्ट है, NaCl है,
एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये सॉल्ट्स पानी में जाकर टूट जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वहां हम क्या नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक देयर मॉलिक्यूलर वेट, बट वी टेक देयर formula weight, although molecular weight is same as is, so molarity is same as is. तो but the difference lies here, आप NaCl को एक फॉर्मल बोलोगे चलेगा, आप उसको एक मोलर बोलोगे चलेगा, आप C6H12O6 ग्लूकोज को एक फॉर्मल बोलोगे नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज इज अ कोवलेंट कंपाउंड, वो पानी में भी वैसा ही रहता है। इसका मतलब आप किसी फॉर्मल को मोलर बोल सकते हो, बट हर मोलर को आप फॉर्मल नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? एंड लास्ट वेरी स्मॉल टर्म is small m and is called molality. Is called molality. इस molality में सिर्फ इतना फर्क है that it is mole into 1000 upon weight of solvent इन ग्राम्स। इसका मतलब यहां कोई भी वॉल्यूम फैक्टर है ही नहीं। इट मींस टेम्परेचर मोलैलिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मोलैलिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, जो मर्जी हो, जहां मर्जी हो, molality will always comes out to be same. So molality helps in bringing integrity among the diverse people. That's how chemistry helps in connecting people. So molality is the best way of expressing concentration when there is a temperature variation. Yes or no? So thank you very much. Have a nice time.